गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बिफोर दिस, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस ऑफ क्लास 10th, द लेसन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पार्ट 2. Part 1 already I taught you. See your video. In that part, I taught you about photosynthesis, but how photosynthesis occurred and what is the meaning of photosynthesis, how we can derive photosynthesis in an equation. See here, photosynthesis. Photosynthesis. Photo means light, synthesis means formation. Photo means light, synthesis means formation. Photo, it means the help using light, it synthesizes the food, it means green plants only. Green plants only. So green plants which have green leaves and some plants like cactus. You know about cactus? You saw where cactus in a desert plant. Cactus is a desert plant. In that plant there is no leaves. Leaves is converted in spine. Spine like this. कांटे जैसा थॉर्नी प्लांट्स होता है. Why? They do not transpiration because transpiration reduces the quantity of water. So it protects the transpiration. The rate of transpiration, it reduces. Spines reduces, and some in desert plants, in desert there is a lack of plants. So God protected itself by producing spines on that, ताकि जानवर इसको खा न सके. ताकि ये लिप्स नहीं है, ये मॉडिफाइड स्टेम है. ये मॉडिफाइड स्टेम है, ये लिप्स नहीं है, बट शोइंग ग्रीन इन कलर. बाय दिस photosynthesis occur in desert plants. Okay, but in green leaves, how photosynthesis occurred? By using water, carbon dioxide, equation, sunlight, for chlorophyll gives out glucose plus oxygen. This upward arrow shows existing of oxygen into environment. So all these are natural things, not man-made. All these components are natural components. Water is natural, carbon dioxide is natural, chlorophyll is natural, sunlight is natural, glucose is natural, oxygen is natural. Water, green plants absorb water by the help of roots transported through stem to the leaves. Carbon dioxide present in environment, atmosphere, it goes through leaves, stomata. Sunlight trapped by chlorophyll present in green leaves. After this process, this is the chemical carbon process equation, and the product is glucose and release of oxygen. In the chemical formula,
how we can derive it? H2O, it means water. Here, H2O means water. CO2 means carbon dioxide. Sunlight, chlorophyll, and gives out C6H12O6 plus O2. Understand? This is the equation of photosynthesis. This is the equation of photosynthesis in chemical formula. But see here, this is the arrow represent the natural components used by a plant, used by a leaves, is this H2O, carbon dioxide, sunlight, chlorophyll, and the product is this. So here this is left side. Equation have two sides, left and right, left and right. ठीक, ओके. तो जितनी लेफ्ट साइड में आपके यहाँ इक्वेशन में जो प्रोसेस लगा, रिएक्शन में जो प्रोसेस लगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स, चाहे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं या कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, उतने ही यहाँ प्रोडक्ट में आपको रिलीज करेंगे. ठीक है, प्रोडक्ट भी उतना ही मिलेगा. ऐसा नहीं कि यहाँ अगर आपको हाइड्रोजन हम 2 दे दें तो वहाँ 4 दे देगा, ऐसा नहीं. तो इसको इक्वेशन बैलेंस कैसे करेंगे? C6H2O 6CO2 एंड 6O2 बैलेंस है. आप काउंट कर लीजिए, बैलेंस इक्वेशन है. ओके, अंडरस्टैंड? अभी आपको हम बताते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस वही प्लांट करता है जो ऑटोट्रॉफ्स है. ऑटोट्रॉफ्स में सी है, ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकेंड वन हेट्रोट्रॉफ्स. These autotrophs means producer only. Heterotrophs means depend on green plants. जो पेड़ पौधे, जो पत्तियां अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं. प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादक. और जो अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स के रूट्स में रहे, स्टेम पे रहे, अदरवाइज उसके पूरी शाखा पर रहे, अम्ब्रेला शेप में, ये सारे के सारे ये क्यों रहते हैं? क्योंकि अपने भोजन को लेने के लिए उसमें होस्ट है. ये होस्ट हो गया और ये सारे के सारे उसमें ये पैरासाइट टाइप का काम करते हैं, अपना भोजन उसी से लेते हैं. तो प्रोड्यूसर जैसे आपने बताया, देखिए ये प्रोड्यूसर हो गया, ये ग्रीन प्लांट्स हो गए, ग्रीन प्लांट्स. और ये सारे के सारे क्या हो गए? जैसे ग्रीन प्लांट्स को आपको हर्बीवोर्स हो गया, हर्बीवोर्स में क्या आ गया? गोट आ गया, रैबिट आ गया, बर्ड्स आ गई. बर्ड्स, सब बर्ड्स नहीं, कुछ बर्ड्स लिव इट. उसके बाद में ये इसी में ही आप देखिए कार्निवोर्स आ गया. सेकेंड आपका थर्ड ऑमनिवोर्स आ गया. अब देखिए ये ग्रीन प्लांट्स को डायरेक्टली, ये हर्बीवोर्स गोट ग्रीन प्लांट्स को डायरेक्टली खाता है ना. और ये थर्ड स्टेज में आ गया. थर्ड स्टेज में देखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ये हर्बीवोर जो गोट हो गया, या रैबिट हो गया, या अदर काउ हो गया, बफेलो हो गया, कैमल हो गया, ये सारे हर्बीवोर्स है, कम्प्लीटली हर्बीवोर्स है.
नो डाउट। ये सारे के सारे हर्बीवोर्स होते हैं, ये प्लांट ईटर होते हैं। प्लांट या प्लांट के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको डायरेक्टली खाते हैं ये। उसके बाद में ये जो कार्निवोर्स है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाता है। और ऑमनीवोर्स भी वही सिस्टम है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये तो सबको खा जाने वाला है, ऑमनीवोर्स सबको खा जाता है, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो या कार्निवोर्स हो, सबको खा जाता है। अंडरस्टैंड? तो इतना आप समझ लीजिए द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ्स मीन्स न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, अंडरस्टैंड? खुद अपना नरिशमेंट कहे उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जो अपना खुद का, ऑटो मीन्स सेल्फ हो गया, अपने आप स्वयं, ऑटोट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट, पोषण करे। जो अपना पोषण स्वयं करे, दैट प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। अंडरस्टैंड? And now next second chapter, heterotrophs. Not second chapter, second topic, heterotrophs. The plants that lives on root, on the stem, or on the above of any plant for their food is called heterotrophs. Understand? But how? The mode of heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition में आपको सबसे पहले बताएंगे कि पैरासाइट्स, नंबर 1 पैरासाइट्स इनको कहते हैं परजीवी। इट मीन्स जो अपने भोजन के लिए दूसरे ही प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहे, उनको कहते हैं पैरासाइट्स, ठीक है, परजीवी। चाहे वह रूट्स में, जैसे अभी डोडर है, डोडर डोडर एक तरह का प्लांट्स होता है। डोडर हो गया, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए डोडर, ठीक है। ये जो रूट्स होती है प्लांट्स की, ये प्लांट्स की रूट्स पे ये ऐसा रहता है, सिर्फ चिपका रहता है, और ये क्या काम करता है, suck the nutrients from the plants to alive। ये जीवित रहने के लिए इनसे कंप्लीटली अपना भोजन लेता है ये डोडर, ठीक। एक तो ये हो गया एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, अमर बेल या कैस्कुटा कहते हैं इसको, कैस्कुटा, अमर बेल या कैस्कुटा। आप देखे होंगे कि अम्ब्रेला शेप में ये प्लांट्स है, ये कोई प्लांट्स है, ठीक है, ये ब्रांचेज हो गई, उसी के ऊपर ये छाया रहता है, अम्ब्रेला शेप, इसी को कहते हैं अमर बेल। ये येलो स्ट्रक्चर, येलो कलर का होता है, ये किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, और ये किसी न किसी पौधे के ऊपर अम्ब्रेला शेप बना के रखता है, इसी को कहते हैं अमर बेल या कैस्कुटा। ये स्टेम में ये अपने रूट्स को अंदर डाल लेता है, ठीक है, इसको लपेट के अंदर कैरिकल्स करता है, मीन्स उसमें चुभो देता है और उससे ही सेट करता है अपना, और वो इलाज करता है, ठीक है। अब देखिए आपको हम बताते हैं, ये तो हो गए आपके पैरासाइट्स। और भी पैरासाइट्स हैं, कैसे, जैसे पार्शियली पैरासाइट्स जिसको कहते हैं, आप देखिए पार्शियली पैरासाइट्स, some plants make their own food except nitrogen, just like Venus flytrap and sundew,
they are those plants are called insectivorous plants. Insectivorous plants. Insectivorous plant. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के विषय में भी हम आपको बताएंगे। अभी देखिए आपको बताएंगे, इसी में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपको एक बताया था कि इंसेक्टिवोरस जैसे आपने कभी देखा होगा कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं अपना फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, बट कुछ जो जैसे अभी नाइट्रोजन के लिए एक इनको कहते हैं कीटभक्षी पौधे, जो कीड़े मकोड़े को पकड़ के खाता है। वो क्यों खाता है? अपने नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए वह इंसेक्ट्स को खाता है। इंसेक्टिवोरस जैसे वेनस फ्लाईट्रेप और पिचर प्लांट्स वगैरह। अब पिचर को मतलब जानते हैं, सुराही, घड़ा। जस्ट देखिए, अभी आपको बता देते हैं, ये इस शेप में रहता है, ठीक है, इस शेप में रहता है। ये देखिए, इस शेप में रहता है। ये सपोज दैट पिचर प्लांट्स ये क्या काम करता है? देखिए, ये इसका ढक्कन है, ये ढक्कन ऐसे खुल जाता है, ये आपका ऐसे ढक्कन हो जाता है। ये ढक्कन ऐसे रहता है, ठीक। समटाइम्स व्हेन एन इंसेक्ट जैसे ये हो गया आपका, इस पे लोड कर दिया, आ गया। इसमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। इसमें एक तरह का नेक्टर होता है, वह नेक्टर इसमें जब बहुत स्मेलिंग रहती है उसकी, बहुत अच्छा सुगंध आता है वैसा। तो ये सारे के सारे कीट मकोड़े जो होते हैं ये बड़ा अट्रैक्टिव होते हैं इसकी तरफ, और अट्रैक्टिव जैसे ही होते हैं, ये क्या होता है कि इस पे जो होता है चिपचिपा एक लिक्विड यहाँ पर ड्रॉप करता है, ये सिक्रेट करता है, और उस पे जाके ये चिपक जाता है। स्टिकी मटेरियल होता है, और उस पर जाके जैसे ही बैठता है उसका पैर उसमें फंस जाता है और वो उड़ नहीं पाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि इसमें अंदर जो है हेयर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? हेयर्स। ये डाउनवर्ड्स होते हैं। ये हेयर्स जो होते हैं डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, और ऐसा नहीं ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ होते हैं। और जैसे ही ये इंसेक्ट ये अंदर को जा गया, अब ये अंदर चला गया, अब अंदर से बाहर जैसे अंदर गया, ये ढक्कन ऐसे बंद हो जाता है। ये जिसका लीड जो है, ये लीड हो गया, ये क्या हो गया? लीड हो गया। ये हो गया इसका आपका बॉडी हो गया, ये बॉडी हो गई, ठीक है। अब इसमें जो है ये पचता कैसे है? हाउ इट डाइजेस्टेड इन द बॉडी ऑफ ए पिचर प्लांट? इट सेक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस। ये जो पिचर प्लांट्स है, ये सन जो है, ये सब वेनस फ्लाईट्रेप है, ये क्या काम करता है? ये डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है, और ये डाइजेस्टिव जूस इसको पचा देता है, डाइजेस्ट कर देता है। और जैसे ही पच जाता है, पचने के बाद सारा का सारा इसके अंदर का जो क्या है, अमीनो एसिड, नाइट्रोजन, इसको इंटेक कर लेता है, बाकी वेस्ट मटेरियल की तरफ फिर बाहर कर देता है। अंडरस्टैंड? अब देखिए, ये तो आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके हेटेरोट्रॉप्स हैं। ये पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स था, कंप्लीटली नहीं, ये पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स था। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका जो टॉपिक है, इसी हेटेरोट्रॉप्स में सेप्रोट्रॉप्स, नंबर 3 सेप्रोट्रॉप्स। इट मीन्स, ये तो हमने पैरासाइट्स के विषय में पढ़ा। उसके बाद ये पैरासाइट्स में कई तरह के हो गए, पार्शियली हो गए, संबार फुल्ली हो गए, कंप्लीटली हो गए। लेकिन ये सेप्रोट्रॉप्स क्या काम करता है? ये आपके जितने भी आपने सुने हैं कि ये मशरूम हो गया, देखते हैं मशरूम,
ये मशरूम हो गया, ये अम्ब्रेला से, ये मशरूम हो गया। आपने देखा होगा इन रेनी सीजन समवेयर ऑन ए लॉग ऑफ ए वुड, कहीं आपने देखा, या द डस्ट वेयर वी थ्रो डस्ट आउटसाइड, गार्बेज, यू कैन से गार्बेज, कूड़ा करकट जहाँ फेंक देते हैं, और कुछ लकड़ी का जो सड़गला जो रहता है लठ टाइप का, या लकड़ी का एक लकड़ी है, उसको अगर सड़ जाता है तो उसके ऊपर वाइट टाइप का ये आपका ग्रो करना जाता है, इसको कहते हैं मशरूम। ठीक है, ये मशरूम जिसके ऊपर आपका ग्रो किया, अब उसी से ये अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है, उसी से ये अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है, इसी को कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? द प्लांट्स which takes their food on from the dead and decayed materials, they grow on dead and decayed materials and get their food from them, is known as saprotrophs. Okay, understand? ये तो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया ऑटोट्रॉफ्स में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, either they have leaves or spines, and second one is heterotrophs में आपको बताया पैरासाइट्स कैसे लेते हैं, पार्शियली पैरासाइट्स कैसे लेते हैं, फिर सेप्रोट्रॉप्स हो गए, ये सारे के सारे आपको मैंने बताया। तो ये देखिए मशरूम एक तरह का क्या है, आपका एक तरह का फंगी है। ये क्या है? फंगी। ध्यान से सुनिएगा, ये मशरूम जो है एक तरह का फंगी है। जैसे ये आपका ये लॉग हो गया, ठीक है, ये लॉग हमने बताया था। ये अगर बारिश के समय में इसको रख देंगे तो ये इसका जो लेयर होता है वह थोड़ा सा हल्का सा डिकेड होने लगता है, रोटेन होने लगता है, सड़ जाता है। और सड़ने के बाद ये क्या काम करते हैं, ये इनके अंदर भी ये क्या रहती है, हल्की सी रूट्स रहती है, स्लाइटली रूट्स रहता है। अब ये क्या काम करते हैं, एक तरह का डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं। यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस जैसे सेक्रेट करते हैं, यहाँ का जो न्यूट्रिएंट्स है, यहाँ का जो पोषक तत्व है, यह सोल्यूशन बन जाता है। किसमें बन जाता है? इसका सोल्यूशन इट मीन्स किसमें? लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। इसमें लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये धीरे एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब। अंडरस्टैंड? ये आपका फंगी हो गया। या लाइकेन वगैरह भी देखिए, ये सारे के सारे क्या है? सेप्रोट्रॉप्स है। ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय द फंगी आर लाइकेन्स, सम प्लांट्स on dead and decayed materials. They grow on dead and decayed materials and get their food from them, are known as saprotrophic mode of nutrition. Understand? Now next we are going to discuss about how nutrients are replenished in the soil। ठीक है, how nutrients are replenished in the soil। ठीक है, ई होगा बेटा, ठीक है। रिप्लेनिश इन द सॉइल, रिप्लेनिश इन द सॉइल। अब देखते हैं, अभी तक तो हमने आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा है, और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आपने बहुत सारी चीजें समझी। अब समझते हैं कि जैसे हमारे पास कोई सामान है,
ये एक गनी बैग है, बोरा है। इस बोरे में से अगर अनाज रख दें हम, और अगर पर डे हम निकालें इसमें से 2-2 केजी करके, तो ये एक दिन ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्प्टी। ये फुल था, यहाँ पर क्या था, फुल था, लेकिन जैसे ही हम निकालते गए ये खाली हो गया। वैसे ही इस पृथ्वी में स्वैल में, इट मीन्स पृथ्वी, इट मीन्स स्वैल में, ये समझ में आया। ये एक एग्जाम्पल है। ये स्वैल है, जैसे स्वैल में आप देखते होंगे कि जब किसान फसल बोता है तो उसमें कुछ न कुछ ऐड करता है फसल बोते समय। जैसे अभी गेहूं, ज्वार, मकई, बाजरा या पैडी, इट मीन्स धान, राइस, ये जब बोता है तो उसमें ऐड करता है, क्या ऐड करता है, मैन्योर या फर्टिलाइजर। मैन्योर या फर्टिलाइजर्स। ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं केमिकल्स होते हैं, और ये बायोटिक होते हैं। ये बायोटिक हो गए, ठीक है ना, इट मीन्स जैविक हो गए। ये घास फूस से बनते हैं या राख पात से बनते हैं, गोबर से बनते हैं, इनको मैन्योर्स कहते हैं। ठीक, जनरली हम खाना घर में बनाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, उसका राख बचता है, उसको खेतों में ले जाके फेंक देते हैं। या गोबर वगैरह जो सड़ गल गया कुछ, तो उसको जो गार्बेज बन जाता है उसको क्या काम करते हैं, हम अपने खेतों में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी ये जो ये मैन्योर, इट मींस बायोटिक है। क्या है, बायोटिक, जैविक। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, जैविक। ये बायोटिक, ये सारे के सारे प्लांट्स हैं, डेड एंड डिकेड प्लांट्स हैं। और इन प्लांट्स में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, और क्या है, फैट भी है, प्रोटीन भी है। बट ये आपको बताया, उसके बाद में मिनरल्स भी हैं, ठीक है। तो इट मीन्स आपको ये जो मिलाते हैं सॉइल के अंदर, ऐड जो करते हैं किसान भाई, जो ऐड करता है आखिर क्यों करता है, इसमें आपको नाइट्रोजन डालता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, आपको ये इसमें जब ये बोता है, इसमें जब इसको सोइंग करता है किसी भी सीड्स को, तो उसमें इसमें डालता है। क्यों डालता है कि जैसे अभी हमने गेहूं धान की कटाई कर ली, सपोज दैट कि हम पैडी लगाए थे, और पैडी को हमने ये क्या काम किया कि हार्वेस्ट कर लिया, पैडी को हार्वेस्ट कर लिया। तो हार्वेस्ट करने के बाद में हमने देखा कि उसका जो लेवल है, न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल है सॉइल में, वह अमाउंट प्रॉपर अमाउंट है, नहीं है। तो नेक्स्ट जो हम उसमें नेक्स्ट फसल जब हम उसमें ग्रो करेंगे तो उसमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी। जब आवश्यकता पड़ेगी, उसको नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन उसमें है नहीं, मिट्टी में उतना जो ऑप्टिमम अमाउंट में होना चाहिए वो नहीं है। तो ऑप्टिमम अमाउंट में नहीं है तो उसमें क्या होगा कि आपका जो भी प्लांट्स होगा वीक होगा, या उसमें जो फल लगेंगे, जो ग्रेन्स लगेंगे, वह थोड़ा सा उसका क्वालिटी बेटर नहीं होगा। तो इसके लिए किसान भाई क्या काम करते हैं, उसकी जो नाइट्रोजन, आप देखते हैं नाइट्रोजन 77% तो आपका क्या है, ये एटमॉस्फेयर में है, 77% एटमॉस्फेयर में है। वो भी किस रूप में है, गैस के रूप में है, इसमें है गैस के रूप में है। तो हमारे पास कोई ऐसा हथियार नहीं कि इस गैस को हम मतलब इसके लिए डायरेक्ट हम दे दें। तो ये एक्चुअली क्या होता है, नेचुरल फिनोमिना है। ये नेचुरल फिनोमिना, जैसे बरसात होती है,
उसमें कुछ जो नाइट्रोजन है डिजॉल्व कर जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो है डिजॉल्व कर जाते हैं और रेन वाटर के थ्रू अंदर एमिनो एसिड के रूप में नीचे आते हैं। किस में आते हैं? एसिड के रूप में नीचे आते हैं। जैसे बरसात हुई ना, तो एसिड के रूप में नीचे है, जिसको कहते हैं रेन एसिड, एसिड रेन आप नाम सुने होंगे, एसिड रेन। ठीक है, तो उस एसिड रेन में क्या होता है कि ये नाइट्रोजन की मात्रा होता है। अब कुछ जैसे प्लांट्स होते हैं, ये आप समझ गए ना, फास्फोरस पोटास etc ये ऐड करते हैं इसमें। अब आपको एक छोटी सी चीज बताएंगे, इसमें क्या बताएंगे, ध्यान से सुनिए कि ये नाइट्रोजन आखिर फुलफिल कैसे होता है किसी। अभी देखेंगे हम कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो ये रेन हुआ, एसिड रेन या किसी भी फॉर्म में होगा, रेन के थ्रू नीचे आया रेन में, तो कुछ लेगुमिनस प्लांट्स हैं, लेगुमिनस प्लांट्स, अंडरस्टैंड? लेगुमिनस प्लांट्स मतलब दलहन फसलें। क्या कहते हैं इसको बेटा? दलहन फसलें। ठीक है, ये दाल वाली जो फसल होती है, जैसे चना हो गया, क्या हो गया? ग्राम, पी, मूंग etc, बहुत सारी आप दलहन फसलें जानते हैं। अब इनका जो आपका रूट्स होता है, ये सब फसलों का, इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया जो होता है ये गांठ के रूप में रहता है, इनकी जड़ों में गांठ के रूप में रहता है, नॉट्स के रूप में रहता है। और ये क्या काम करता है कि इस रेसिड कहाँ है? इस वाल में आ गया, तो ये ऑब्जर्व करने के बाद में इसको ये क्या काम करता है कि एमिनो एसिड के रूप में कन्वर्ट कर देता है, एमिनो एसिड। ठीक है, और फिर इसको कन्वर्ट करके ये नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस, आपको अभी बताएंगे। ये नाइट्रोजन फॉर्म में हो गया, इस तरह से ये प्लांट्स आपका एब्जॉर्ब कर लेता है। चना हो, ठीक है, ये चना, सपोज दैट चने का प्लांट्स हो गया, ये चना का प्लांट्स हो गया, तो ये लेगुमिनस प्लांट्स कहलाते हैं, अंडरस्टैंड? अभी ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। अभी थोड़ा सा मीनिंग से आपको इसका हम कुछ वीडियो में भेजे हैं, व्हाट्सएप किए हैं। अभी वापस कम से कम 15-20 मीनिंग जो भी है उसको आपको सेंड कर देते हैं, और कंप्लीट फेयर बना लीजिए, बुक ले लीजिए, तभी पढ़िएगा बढ़िया से। ओके, बाय।